questions about it that we all have to sort of understand. What I feel is a lot of people join SugarFit and they don't understand how their medicines will be titrated, what will happen, how can all these years that we've been taking these medicines get reduced. Or some people come with this understanding that join karte hi sari dawaiyan will be stopped. And why are my medicines not getting stopped? Why did the doctor not stop my medication? I have joined the program because I want to stop the medication. I think we are here today to probably streamline your understanding of diabetes medicines, your introduction to how we have designed a program that we would help you titrate your medications down. And what are the rules that everybody should look around when they are expecting a medication titration? It's impossible that your numbers are high and you're expecting a medication titration down. And there is no way a doctor should take a chance if the numbers are high in reducing medicines. There are many such questions that come to you. I'm not here to explain to you a pharmaceutical book. I'm not here to explain to you what diabetes medicines are. That is not fair, because for that, we need to go to pharmaceutical school and understand the basic chemical compounds of medications. But I'm here to sort of give you an overview on, and as the questions, I will let Neha go on with her questions, because as the questions mature, and I hope you will really listen carefully, what we are trying to get to you, a knowledge that would benefit you in basically going through the program and helping your coach and your doctor also titrate your medicine down. So Neha will take the questions. Absolutely. So we have a couple of questions that has been, frequently asked by our users, and we are going to take this up today. So the first question which users have basically, majorly asked, ma'am, is that why is it crucial for me as a patient to take my prescribed medications regularly? Yes. So one thing is very important. Throughout the history of discovery of medication, half-life or the activity of a medication in the pharmacokinetics, which means the way a medication works, it's very important that if you let go of a blood level, so when you take a medication, it forms a level of that particular medication in your blood. And if your half-life of a medication is so many hours, you need to do the medication dose again. So similarly for diabetes, that blood level determines your sugar levels where they are going to be. So until and unless your numbers are consistently going down for 3 to 5 days, you should not touch your medication. Plus, taking half the dose of medication is completely useless, because suppose you take one tablet, okay, I'm not going to take 2 tablets, I'm going to take 1 tablet. So what you're doing is that 12 hours that your body's sugar levels are very high because they were not controlled, and the dose of the medicine was twice a day, that level that was high will cause your pancreatic beta cells to not work, which will increase in future the need of more medication. So I would recommend taking the medication as prescribed to you at the regular time. And as your numbers improve with lifestyle modifications through SugarFit or working with them, you check your numbers, you give it to the coach. You just can't say, there are so many times people say to me, and the coaches come back to me and tell me, patient is saying they're hypoglycemic. I think, where are the numbers? Oh, they didn't check, they felt it. So hypoglycemia can be very well confused with a lot of other symptoms that we have. It can be low BP, it could be a viral coming up, it could be an infection in our body. There are many things that give you similar kind of system, shaky, sweaty, and we will put it down to sugars and we are not checking them. So making sure that taking your medications on time keeps, the doctor has given you the medication thinking, depending on your A1C, depending on your SMBG, some dose has been given to you. There is a thought process that goes behind the writing of the medication. If you check your sugars after you start the medication and you find that the numbers are lower than what you want or what you're making you feel comfortable, letting your doctor know through some source, a coach, or seeing them in the office or whatever,
is your duty, but giving a doctor data to change the medicine is very important. Just because I feel low or I feel I am low will not cut it. You need to check your sugar numbers, give the numbers, and say, I'm consistently low after lunch. So the doctor might need to want to change the breakfast medicine. I'm consistently low after dinner. The doctor will then give you a lower dose before dinner. So there is a reason why this is very scientific. Playing with it just because I don't want to take it and that's too much medicine and I'm only going to take one is not going to help your beta cells of the pancreas. There has to be a logic behind medicine reduction. The whole program is to reduce medicine. But the only way this medication can be reduced is by the numbers, the check that you put in the app and the doctor sees a trend is when the medications would reduce. So please make sure that taking your medications on time is very essential for your blood glucose level. And it is good to have. I also think that there is a very big fear of medication. And culturally, I feel that because I have substantially practiced in the West and I've come back and I feel that we are very fearful of taking medication. But the sad part is that the number of people that come to me on antibiotics or मेरा तो पेट दर्द हुआ मैंने pharmacist से दवाई ले लिया in India is much, much more higher than anywhere in the country. The number of people that take sleeping pills in India is higher than anybody in the world. So we are not scared of all of that can give our kidney failure, that can give us antibiotic resistance, but we have fear that we will not take diabetes medicine or blood pressure medicine and iski aadat pad jayegi or I will become addicted to it. That is not the right way of thinking, because if you don't lower your sugar levels and if you don't lower your blood pressure levels, and these diseases will affect your target organs. But we are not afraid of just popping 3 antibiotics that our 11th grade pharmacist has given to us. So all of us have to start thinking that what are we doing? We are taking diabetes medicine and blood pressure medicines because our lifestyles, which is 80% of the times, not 100%, lifestyles have generated these disorders in our body. Now, the lifestyle, if that was changing, I would not need this medicine in future. But currently, when the BP is 200 by 100 or your sugar is 200 or post, that time, these numbers are affecting my very, very important organs of the body. They're affecting my heart, they're affecting my kidneys. I need to lower them now. And tomorrow, when I go back to a greater lifestyle, I will not need these medications. So it is very important to prevent damage to heart, kidneys, target organs, that you lower your sugars currently till your lifestyle becomes your discipline. I hope I guess it's a detailed answer and very well covered all the pointers. I hope this makes sense to everyone. Also, like, as a patient, sometimes it happens like, we just change the timings of the medicine, we forget. So there are a lot of time the questions being answered, how do the specific timings, regularity of taking the medications and their impact on the pancreatic function, why this consistency is so important? How does it make the difference? No, every medication should have an instruction. And I know we are talking about diabetes medicines, Neha, but I can't keep away cholesterol and sugar medicine, blood pressure medicine, because most of the people end up having this triage of high cholesterol, high BP, and high sugar, all three together. And it's a whole mess because people end up being on 5 or 6 medications and then they don't know what to do with what. So let me tell you one blanket statement: all cholesterol medicines after food. Okay, that's your body. All BP medicines unrelated to food. This is a whole gamut of things. BP medicines are not food dependent, any BP medicine. So I would expect you guys to get up in the morning and take your BP medicine. You might have eaten or not, doesn't matter. Blood pressure needs to come down once we wake up and we take it in the evening, whatever time your doctor has said. You can have it with food, but it is not related to food. Now, diabetes medicines, on the other hand, have a different kind of action. Different diabetes medicines have to be taken at different times because some of them need to work before food is put in, like insulin.
And these are short-acting insulin and medium-acting insulin, not long-acting insulin. I'll talk about them different. But most insulins have to be taken before you eat. Then you have to have sulfonylurea group of medications, which are like, pills of, something which pancreatic function. So we need to encourage the pancreatic beta cells to make more insulin after we eat, and that is why these medicines have to be taken before food, and that is sulfonylurea. The rest of diabetes medicine, which is metformin, which is very difficult to digest if you were not eaten on a full stomach, I would recommend you guys take it after food. Only in the combination of metformin with glimepiride, gliclazide, all those sulfonylureas, that metformin combination comes before food. And that is why I never write them, because for me, metformin is to be given combination or plain after food, because I know my patient might have bloating or gas, and it's such a beautiful medicine. I don't want their bodies to resist metformin. So I like metformin after food, and metformin can work pharmacokinetically both ways, but it has such potent effect on your stomach if taken early before food or empty stomach, that there is no point making your stomach go through what it needs to go through with metformin. So metformin after food on a full stomach, I repeat it 100 times, will work much better. And it works fine. It works on insulin resistance. Take it after food. All the other groups of medications, if they are giving alone, can be before or after food. But if they are given with metformin, talk to your doctor, take it after food. It works fine. It is only in combination with sulfonylureas, which are effective only if they're taken before food. You need sulfonylureas are all the glees, glimepiride, gliclazide, glycide, all of these. Amaryl's name se aata, but if you can read the chemical compound, it'll mostly start with GLI. So these are medicines that work right in your body if they are before food. And I think this is what I want to tell you, that be aware before food, after food. Sometimes patients are actually taking the wrong way. And when I talk to them, I always tell them that this is to be taken after food, or, very clear. And then they'll say, "Nahi, but we were taking before food. And why are you giving me diabetes medicine after food? Because the action has to be before the food goes in." Wrong. Only sulfonylureas or certain insulins work the right way if taken before food. Rest of the pioglitazone people, the dapagliflozins, the empagliflozins, the vildagliptins, the sitagliptins, I know you guys must be all thinking, they all can be very well taken after food. If they are without metformin, I don't care. You can take it before or after. But if they are with metformin, I always give them after. So if you need to remember something, because there are so many different associations of how a drug works, what are the side effects of the drug, we have to, as doctors, really work with diabetes as what time of they should be taken. So remember that metformin, I really request all of you, even if you have in combination, please talk to your doctor. Why am I taking it before food? It should be after food. And there might be an oversight or a quick consultation, or your doctors might have, but I really believe that it needs to be taken after food. Now, long-acting insulins, one more thing I will say. Long-acting insulins, which are once a day injection, they have to be taken any time of the day, because they are slow release and they come out very small amounts. It does not matter before or after food. I give them at 9 p.m. or 9 a.m. and you would have eaten breakfast or not, doesn't matter, because it really comes out. These are the long acting and the ultra long acting ones, which don't have a role of instant action, but very slow release of insulin throughout the day. I hope I answered. Yes, ma'am. थोड़ा सा we will mix in Hindi and English, because बहुत सारे लोग हिंदी. हाँ, बिल्कुल. I would like to. I'm just confused which language I have to follow. I'm little bit of Hindi, like to just at the end to just summarize everything. So मैम ने यही बताया भी कि अगर हम किसी भी metformin पे हैं तो after food लीजिए, and if you are on any medication which is a sulfonylurea group, जो कि हमारे pancreas को stimulate करता है to produce insulin, ऐसे कौन से medicines होते हैं, कोई भी IDE से जो end कर रहा हो, glimepiride. Yeah, no. GLI. They start with GLI. They end differently. Okay. Yeah, ID से भी end करता, but GLI is the key. Glycide, glimepiride, gliclazide. It's more GLI. जी.
तो उन आपको जिस भी टाइम, मेजर हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी मेडिकेशंस का टाइमिंग दिया हुआ है डॉक्टर ने, आपको वो जरूर फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि कभी भी हम ले लें। अब ये बिफोर फूड क्यों लेना है? क्योंकि हमारे पैनक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा है टू प्रोड्यूस इंसुलिन। दैट्स व्हाई मैम इज एम्फसाइजिंग कि आप जब भी ये मेडिसिन आपको दी जाती है, खाने से पहले ही लीजिए। भूल गए तो खाने के बाद ले लेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं है, उल्टा असर करेगा। तो अपने मेडिसिन का जो टाइमिंग डॉक्टर ने बताया उसको बहुत ध्यान से सुनिए। 2 बार पूछना है 2 बार पूछिए, कोच से पूछिए, और उसको सही समय पर आप दीजिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने हैं। सेकेंडली मैम, आई थिंक हमने बहुत अच्छे से ये कवर कर लिया है। तो जिनको नहीं समझ में आया, थोड़ा टेक्निकलिटी तो है, आपको इतना ज्यादा, अगर आप कोई भी ग्लिमेफ्राइड ग्रुप या सल्फोनाइल यूरिया नहीं ले रहे तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैम जो क्वेश्चन है कि देयर इज अ पेशेंट हु हैज आस्क्ड कि like can I as a patient adjust or titrate my medication dosage, or is that something that only a healthcare professional only should handle? Because बहुत टाइम ऐसा होता है हाइपो लगा उस टाइम पे, they are not in touch with the doctor, so they skip, और क्या सोचते हैं कि जब हम कुछ नहीं खा रहे तो we don't take the medication. So what is your point on that, कि अगर हम खाना नहीं खा रहे तो मेडिकेशन लेना चाहिए कि नहीं, और किस तरह से टाइट्रेट कर सकते हैं? या मैं इसको डिफरेंटली देखूंगी, इट हैज टू बी लुक्ड डिफरेंटली। बिल्कुल। देखिए, आई डू बिलीव कि ये जो आपकी मेडिसिन टाइट्रेशन का नाम अलग होता है, और जब मन करा नहीं ली और जब मन करा ली। व्हाट इज गोइंग ऑन नेहा? Please don't use the, yeah. तो जब मन करा ली, जब मन करा नहीं ली। मैं तो आज फास्टिंग कर रही हूँ, या मैं फास्ट कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक ये जो चेंजेस करते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी को फायदा दे रहे हैं, तो आई थिंक फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। मैं इसको आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस द बेस्ट वे पॉसिबल। इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए हम आपको और कंफ्यूज कर देते हैं। बट एक डायबिटीज पेशेंट शुड बी हैविंग रेगुलर मील्स, उनको समय पे खाना चाहिए। ये उनकी बॉडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इंडिया टॉक सुनते हैं तो आप मेरा सर्केडियन रिदम सुनते हैं, आप हार्मोन सिक्रीशन समझते हैं। तो ये डायबिटिक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने खाने को अपनी मेडिसिन बना लूं और मेरी मेडिसिन कम हो जाए। तो दैट इज द गोल दैट एवरीबडी शुड अचीव, कि माई फूड बी माई मेडिसिन एंड माई मेडिसिन विल बी लेस। पर उसके लिए दो चीजें हैं, खाना क्या खाना है और कब खाना है। तो डायबिटिक्स के लिए टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स कैसे सिक्रीट करते हैं। और अगर आप ये दो चीजें बहुत अच्छी तरह से अंदर तक समझ गए और आपने उसको ढाल दिया, कितना खाना है, क्या खाना है और कब खाना है, 3 चीजें, तो then doctors will be ending up producing your medicine. So titration of medication should be done by a doctor depending on the numbers provided by the patient. फिर मैं वापस आपको SMBG पे लाऊंगी। आप, how does a doctor know that you need to have less medicine? By looking at your numbers in the last week, last 10 days, A1C सबका combination, by the coach telling the doctor कितना patient is adhering, कितनी exercise चल रही है, muscle buildup कितना है, waist circumference कितना है, weight कितना है. So the most important aspect of you joining SugarFit should be, am I giving weight? Am I giving waist? Am I giving SMBG? Because I want my medication titrated. I need a doctor to tell me, आधी गोली कर लो, full गोली कर लो, 1/3 गोली कर. I want that every time I meet my doctor, I give my numbers and I have stayed by what they say, and can the medication be reduced? So number one, to answer नेहा, जनरल ब्लैंकेट स्टेटमेंट और सबके लिए है कि दवाइयां कम आपकी डॉक्टर को ही करनी चाहिए, और वो आपके नंबर देख के कम करेंगे, 3 नंबर्स देख के कम करेंगे। आपके SMBG जो शुगर आप चेक करते हैं, ग्लूकोमीटर, आपका वेट, आपका वेस्ट मेजरमेंट, ये बहुत जरूरी नंबर्स हैं जिनको देख के मैं डिसाइड करती हूँ व्हाट इज द नेक्स्ट 6 weeks of your progress into the program. But I won't end here, because there are many situations like हमारे 1 month के फास्ट होते हैं, रमजान होते हैं, एंड देन देयर इज हमारे अपने फास्ट होते हैं इंडियन, कई लोग एकादशी करते हैं, कई लोग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन नाउ। इन एनी
fast, I'm talking about Ramzan separately, but in any other fast, like for example, Ekadasi, or you do Shivratri or Janmashtami or Devika, we have very good options throughout the day to eat nuts, to eat dahi, to eat things that will not make you hypoglycemic, right? Usually our fasts don't last 30 days. They last 1 day or 2 day or once in a 10 days, or Ekadasi is once in 14 days. It is twice a month. It is just those fastings have to be discussed with our coaches, and your diet, so that your sugars do not get low on that day, or your discussion with your doctor saying, listen, I do every 14 days a fast and this is what I eat in the day. What should I do? Let your doctor be a participant of what needs to be done for you. Especially in people who do Ramzan for 30 days, you need to have a very good discussion with your doctor and with your coach, because your food at 6 a.m. or whatever time you eat, and at the iftar time in the evening at 6 o'clock, have to be a certain way. You cannot just have jalebis and gulab jamuns and puris. You have to have everything right. And how do I do change the medication, Neha, of time, dose, during 30 days of Ramzan for all my patients. So it's not very difficult, but involve an expert to tell you rather than you doing it to yourself, because you will make a mistake. And it's not that मेरे को next meal नहीं खाना तो मैं दवाई नहीं लूंगा. What do we eat? Can I eat nuts? Can I eat salads? Can I eat something else? So if you don't eat, also it is not good for you. So I'm trying to tell you that don't confuse the body. One day food is coming in, one meal no food is coming in. I eat one meal a day and my body should function. I think we are doing all these confusions. ये हम खुद create कर रहे हैं सारा confusion. Simple life, disciplined life, daily life, small snacks, eating at right times, छोटे portions, क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, to understand that and to live by it, about 90%, about 80% will guaranteed have your doctor or your lifestyle will become your medicine, and your medicine will be replaced by your lifestyle, and that is the whole goal. तो आई होप मैंने कंफ्यूज नहीं करा है, बट टू नहीं मैम, बिल्कुल आई थिंक appropriate आंसर था. And please, I request each and every one of you to focus on what she's saying, because these sessions are very rare. It's very rare to get this information. So please ध्यान से सुनिए. Instead of just being on the chat, आपके questions आप बाद में लिखिएगा, सुन लेंगे, हम बिल्कुल लेंगे सारे questions. But अभी ये knowledge बाद में फिर से repeat नहीं होगी, तो please बहुत ध्यान से सुनिए. थैंक यू सो मच मैम. आई थिंक बहुत अच्छे से हमने कवर किया है ये क्वेश्चन. इसके अलावा ना बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि लाइक पीपल टॉक लाइक बिकॉज यू आर सो नॉलेजेबल, यू हैव सच अ ग्रेट एंड वास्ट एक्सपीरियंस इन मेडिसिन्स. डू यू वांट टू टॉक अबाउट द पीपल हु आर ऑन insulin and they always think that we need it lifelong? So what is your say on insulin part, and how many different types of insulin are there, what they have to know and keep into the consideration? Please मैम थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताइए. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेहा, और ये एक्सक्लूसिवली एड्रेस होना चाहिए इंसुलिन का, बिकॉज हमारे देश में, इन आवर कंट्री, बहुत सारे टाइप 2 जो टैबलेट से शुरू करते हैं, और धीमे 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 ओवर द इयर्स लाइफस्टाइल फूड मेडिसिन नहीं बन पाती है, और हम मेडिसिन को बढ़ाते जाते हैं, फाइनली वो टाइप 1 बन जाते हैं, उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है. पर वो टाइप 1 नहीं है, बिकॉज वो उनकी ओरिजिनली ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है बेटा सेल्स का, उनको तो लाइफस्टाइल ने उनको साथ ही नहीं हुआ लाइफस्टाइल का, तो वो मेडिसिन बढ़ती है और फाइनली हमको इंसुलिन की जरूरत पड़ गई, तो हमारी बेटा सेल्स काम नहीं कर रही. पर क्या हम उन बेटा सेल्स को रिवाइव कर सकते हैं? ये डिफरेंस होता है बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2. तो इन टाइप 2 जो आगे जाके उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, वो प्योरली टाइप 1 नहीं बनते. उनके बेटा सेल्स अभी भी काम कर सकते हैं अगर वो अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करें. और मैंने आफ्टर 26-27,000 पेशेंट्स ऑफ शुगर फिट, ह्यूज परसेंटेज, मैंने बहुत पेपर भी लिखे हैं इसके ऊपर, कि कितने लोगों की इंसुलिन या तो 200 यूनिट से 5 यूनिट हो गई, विच इज लाइक लिटरली नथिंग, या 50 यूनिट से खत्म हो गई. उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को अपनी दवाई बना लिया. जो मैं हमेशा कहती हूँ, खाने को अपनी दवाई बना लीजिए, लाइफस्टाइल को अपनी दवाई बना लीजिए, ये ही बस हमारा मंत्र है. तो वेरी मच पॉसिबल कि अगर आप
पर अगर आपकी 10 साल से इंसुलिन चल रही है तो आपकी बीटा सेल्स को आदत पड़ गई कि बाहर से इंसुलिन आएगी। उसमें मैं कोई गारंटी नहीं देता है, पर ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी इंसुलिन की डोज जरूर कम होगी। तो अगर आप 50 यूनिट ले रहे हैं तो आप 25 पे या 20 पे या 10 पे या 5 पे आ ही जाएंगे। वो भी एक बहुत बड़ा विन है बॉडी का। तो आप ये ना ये समझ के रहिए कि बंद करना तो ऊपर वाला जानता है, हमारा इंटेंशन है कि हम आपकी बंद कर दें, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बीटा सेल बची हैं, क्या है, ऑल ऑफ दैट गोज इन। तो ये तो इंसुलिन का है कि आप कोशिश करें कि मैं इंसुलिन को अपने लाइफस्टाइल से रिप्लेस करूंगा। अगर आप लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पा रहे, आप अपनी कोच की बात नहीं मान पा रहे, आप वेस्ट नहीं कर रहे, आप ग्लूकोमीटर चेक नहीं कर रहे, आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं, मसल नहीं बना रहे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने रिप्लेस नहीं करी, तो दवाई का खत्म होना हार्ड हो जाता है। टाइप्स ऑफ इंसुलिन बहुत जरूरी है जानना, इसको बहुत शॉर्ट रखूंगी पर बहुत जरूरी है। इंसुलिन कई तरीके की होती हैं, and there are many types of insulin. I'll try to do English Hindi. Really, it is a lot of work for me to speak Hindi and speak English. It is extremely difficult. तो आप प्लीज पेशेंस रखें। अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो हिंदी वाले परेशान ना हो, और अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो इंग्लिश वाले परेशान ना हो। इट्स रियली a difficult thing for me. तो I'll try to do both. So इंसुलिन अकॉर्डिंग टू कितनी जल्दी वो हमारी बॉडी में काम करती है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। तो एक होती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है जो मिनट्स में आपकी शुगर को कम कर देती है। तो अगर आप उसको लेते हैं तो आपको राइट अवे खाने के सामने बैठना पड़ता है, बिकॉज अगर वो काम करने लगी और खाना अंदर नहीं गया तो आप हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएंगे। इसको रैपिड एक्टिंग बोला जाता है। आपने देखा होगा एक्ट रैपिड के नाम से बड़ी फेमस है, बट मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ इंसुलिन के बारे में बताई। तो ये होती है रैपिड इंसुलिन। ये ज्यादातर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एक्सेप्ट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। प्रेग्नेंट लेडीज को हमको, जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, वो उनको हमको ऐसी चीज देनी पड़ती है जो उनके खाने में इंस्टेंटली इफेक्ट करे, क्योंकि खाने के बाद की जो शुगर राइज होती है प्रेगनेंसी में, उसके कारण बच्चे को बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो रैपिड इंसुलिन दिन में 3 बार ली जाती है बाय एवरी प्रेग्नेंट वुमन, जो भी उनकी जेस्टेशनल डायबिटीज शुरू होती है, जब तक बच्चा बर्थ होती है। उसके बाद हमको यूजली विद इन अ वीक, विद इन 3-4 दिन में बंद करनी पड़ती है, बिकॉज बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो इसके अंदर सबसे जरूरी है कि खाना सामने रखा जाए, इंसुलिन ली जाए और आप खाना खाएं। तो ये हो गई आपकी रैपिड इंसुलिन। 90% लोग बहुत लाइक करते हैं हमारे देश में इसको। वो ये भूल जाते हैं कि वो कितने इंजेक्शंस ले रहे हैं, पर उनको ये याद रहता है कि आज हम गुलाब जामुन खा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम थोड़ा से 4-5 यूनिट्स ज्यादा ले लेंगे। रैपिड के क्या जाता है, हम इतनी ले रहे हैं, हम 4 पर हम गुलाब जामुन तो खा लेंगे, अपना समोसा तो खा लेंगे अपने। लॉन्ग टर्म पे उसका साइड इफेक्ट आप लोग नहीं सोचें। तो इसलिए मैं बहुत गुस्सा होती हूँ, अपने कोचेस को चाहती हूँ कि वो रैपिड इंसुलिन जल्दी से बंद करें, बिकॉज पेशेंट उस पर एडिक्टेड हो जाता है। उसको वो लगता है वो खा के ज्यादा ले सकता है, वो उसके नुकसान के बारे में सोच भी नहीं रहा है, उसको बस खाना नजर आ रहा है। वो कह रहा है मैं 1 खा सकता हूँ, ज्यादा लगा लूंगा, मैं 6 लगा रहा हूँ, मैं 8 लगा लूंगा। बहुत बहुत नुकसानदेह है। एक तो आप दिन में 3 वो शॉट ले रहे हैं, तो 3 इंजेक्शन लग रहे हैं आपके। तो आपको की बॉडी को आदत, एक अजीब से माइंड को आदत पड़ गई है कि मैं खा सकता हूँ क्योंकि मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, और मैं खा सकती हूँ क्योंकि बिकॉज आई एम टेकिंग इंसुलिन आई कैन ईट। इट्स अ वेरी वेरी हाई एडिक्टिव पोटेंशियल व्हेन आई एम कंसिडर्ड। तो ये मेरी थॉट प्रोसेस है। मैं चाहती हूँ सारे पेशेंट रैपिड से सबसे पहले निकल जाएं। कोचेस परेशान हो जाती है, मैम खाने के बाद स्पाइक्स हुए, आपने लॉन्ग एक्टिंग दे दी, ये वो। मैं उनको संभालती हूँ, उनको कहती हूँ इट्स ओके, थोड़ी स्पाइक्स होंगी, हम इनको खाना बदलेंगे, एक्सरसाइज बदलेंगे, पर रैपिड से निकालना बहुत जरूरी है सबको। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं, हम रखते हैं ना। उसके बाद आती है थोड़ा सा आधा घंटे में जो काम करती है, उसको बोलते हैं रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। वो भी आधा घंटे में काम करती है, आप उसके 20 मिनट बाद तक खाना खा सकते हैं, थोड़ा आपको टाइम देती है वो, और वो आपका शुगर कम करती है। आजकल कम यूज होती है बिकॉज उसमें इंजेक्शन और वटेवर वटेवर, एक्ट रैपिड पेन में आती है, फटाफट लग जाती है, तो कम यूज करते हैं हम। उसके बाद आती है मॉडरेट और मीडियम 8 घंटे काम करने वाली एनपीएच इंसुलिन। आपके बहुत लोग होंगे इस प्रोग्राम पे आज जो मिक्स स्टार्ट यूज करते हैं, हुमुलॉग यूज करते हैं, और उस यूजली वो ऐसी आती है 70-30 आती है।
75-25 आती है, 50-50 आती है, मैं समझाती हूँ उसको। और एक प्योर एनपीएच भी आती है जो 8 घंटे काम करती है, दिन में 2 बार लेनी पड़ती है, ब्रेकफास्ट से पहले, डिनर से पहले। अब ये इंसुलिन कॉम्बिनेशन में आती है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग 8 घंटे वाली। 70% ऑफ 8 घंटे काम करने वाली, 30% आती है उसमें शॉर्ट। तो आप जब लेते हैं तो कुछ 30% अमाउंट तो उसी मील को कवर करता है, और बाकी 8 घंटे काम करता है। और उसको आप अगेन ट्वाइस देते हैं। 50-50 का मतलब है 50% मॉडरेट एक्टिंग एंड 50% आपकी शॉर्ट एक्टिंग, और वो 2 बार दिन में दी जाती है। तो ये बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग, और ये होती है 8 घंटे की मॉडरेटली लॉन्ग। एक आती है 24 घंटे काम करने वाली, जिसको बोलते हैं लैंटस बेसरलॉग, इनका नाम होता है। ग्लार्जिन इसका कंपाउंड कहा जाता है। ये बेसिकली डेटेमियर नाम से आती है। 2-3 तरह के कंपाउंड होते हैं इंसुलिन के, जिनकी रूम उसमें आती है। वंस अ डे लेनी चाहिए मेरी नजर में। मैं देखती हूँ आजकल इंडिया में डेस्परेशन, लैंटस दिन में 2 बार दी जाए, ठीक है, आई मीन दी जा रही है, बट जो जो फार्माकोकाइनेटिक्स बताती है, आप मैनेज करिए, स्लो रिलीज है, दिन में 1 बार दीजिए, काम करती है। और बहुत अच्छी तरह पेशेंट को डिपेंडेंट नहीं बनाती है। पेशेंट को नहीं लगता कि मैं इंसुलिन रहता तो ये खा सकता हूँ, वो सब नहीं होता है। दैट इज नॉट हैपनिंग विद लैंटस। लैंटस इज लाइक अ ड्रग दैट कैन बी टेकन, इज अ ब्यूटिफुल मेडिसिन। बेसिलॉग, एक्चुअली आई शुड नॉट टेक the company के नाम, I should say Glargine insulin, which is basically once a day, or Detemir insulin, which is once a day, which is a long acting 24 hours. और अब आने लगी है एक 36 to 72 hours वर्किंग इंसुलिन, चाहे दिन में 1 बार ली जाती है, उसका नाम है डिग्लूडैक। ट्रेड नेम ट्रेसिबा के नाम से आती है। अगेन वंस अ डे, वेरी एक्सपेंसिव, बट अगेन वेरी यूजफुल फॉर अ पर्सन। एक तो शॉर्ट कम लगते हैं, जो हमारे जहाँ इंजेक्शन लगता है वहां पे लाइपोडिस्ट्रोफी होती है, वो नहीं होती है। एडिक्शन नहीं होता, फूड एडिक्शन नहीं होता कि मैं ये खा के इंसुलिन लगा लूं। तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है। बहुत रूल्स हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के। कोशिश करिए कि आप अपने डॉक्टर से कोशिश करें कि हम लॉन्ग एक्टिंग पे आए, हम रैपिड नहीं लें। हमको नहीं खाना गलत, क्योंकि वो हमें नुकसान देगा। उसके लिए इंसुलिन ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है। इंसुलिन के खुद के साइड इफेक्ट से ज्यादा लेने से हर दवाई, एंड दैट इज वाई, हर दवाई जो आपको फायदा दे रही, जो आपके हार्ट को बचाती है, किडनी को बताती है, फायदे हैं शुगर कम करने के, पर उसके साइड इफेक्ट, जैसे आप पैरासिटामोल लेते हैं, जैसे आप आइबुप्रोफेन लेते हैं, जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमको फायदा देती है पर उसका नुकसान नहीं है। ऐसे ही डायबिटीज गोलियों के फायदे हैं, आपकी शुगर कम होनी जरूरी है, पर ज्यादा लेने से तो वो नुकसान देगी। तो अपने आप को रिकग्नाइज करें, क्या मैं रैपिड से यूज टू होता जा रहा हूँ, क्या होती जा रही हूँ, एम आई गेटिंग यूज टू इट, इज द रैपिड मेडिसिन वांटिंग मी टू ईट रॉन्ग। तो ये सब बातें आपके अंदर आनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन शुड बी देयर, अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर, एंड long actings are always going to be better than short actings, I believe. इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब अगर हम टाइप 1 के बारे में बात करें, आई हैव टू से दैट ऑल्सो, ताकि सबको पता रहे। मैंने आपको जेस्टेशनल के बारे में बात करी, बट टाइप 1 के बारे में, टाइप 1 में देयर इज नो फंक्शन, और टाइप 1.5 जो आगे जाके बिल्कुल फंक्शन खत्म हो जाता है, देयर इज नो फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। मतलब अगर वो आधी रोटी भी खाएंगे या 2 चम्मच चावल भी खाएंगे, उनकी शुगर शूट करेगी, बिकॉज देयर इज नथिंग इन द बॉडी टू डाइजेस्ट। तो उन लोगों को रैपिड कीपर देना पड़ता है। द वे मैं उनको देती हूँ, मैं उनको मिक्स्ड इंसुलिन 2 बार दिन में देती हूँ, मॉर्निंग इवनिंग। मैं कहती हूँ आप ब्रेकफास्ट पे लीजिए, शॉर्ट एक्टिंग के संग 50-50% करके देती हूँ। तो शॉर्ट एक्टिंग 50% लॉन्ग एक्टिंग, और शाम को भी 50-50 देती हूँ। लंच में कोशिश करती हूँ मैं उनको बिल्कुल ग्रेन फ्री लंच दे दूँ। मैं कहती हूँ आप सैलड्स खाइए, या पनीर खाइए, या आप जो भी खाइए, नॉन वेज खाइए। आप लंच के अंदर अपना कार्ब ही हटा दीजिए, बिकॉज मैं एक और इंजेक्शन आपको नहीं देना चाहती। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको 2 इंजेक्शन दूं, एंड वो भी मिक्स्ड दूं, लॉन्ग एक्टिंग। और उनकी बॉडी को, मुझे लगता है कई बार जो टाइप 1 होते हैं ना नेहा, वो 12 साल की एज पे हो जाते हैं, 10 साल की एज पे जाते हैं, उनको 90 ईयर्स इंसुलिन देना है, मैं उनको कितने इंजेक्शन दूंगी। तो आजकल इंसुलिन पंप्स भी चल गए हैं, पर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इंसुलिन पंप इज गुड, एक पंप लगा देते हैं, वो आप जितने यूनिट्स लेने ले लो खाने से पहले, तो वो चलता है फॉर टाइप 1। तो दैट इज फॉर टाइप 1। आई एम सॉरी, आई हैव स्पोकन टू मच, आई विल टेक अ ब्रेक। Please sip some water. I think बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. These type of information is very rare to get. बहुत जरूरी है समझना.
I think whoever is here is really lucky because this session has been planned keeping everyone's doubts in mind. And I hope you are getting the answers for your questions also. Getting and talking about the medicines is something very difficult because it's such a vast topic. It's very difficult to explain in such a ease, which Dr. Chavi has done. I'm sure you must be able to grasp what she's saying and relate to it. Everything is very important. We often miss the titrate the medications on our own, which is a wrong thing. Please talk to your practitioner. I hope you are also understanding that why it is important to make the lifestyle changes. So, ma'am, when we are talking about the lifestyle management, you always talk that uh, we instead of taking the medicines, we should take follow the LSM for the cure. So, as a patient, how can incorporating our lifestyle management techniques help in reducing blood sugar spikes, and also how potential there are in minimizing the need of medication? Because this is something which people are not able to adopt or still accept that fact that what is the role and how it helps. So I'll simply compare this to any other situation in your life. तो पहले क्या होता है जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम होती है, एनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, पहला क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन. हियर ये प्रॉब्लम है, and then we try to find a solution for it, and usually solutions are not easy. For example, you are at a work situation where you don't like your work at all, and you're just not productive, and समझ नहीं आ रहा है जॉब में क्या expectations हैं, क्या चल रहा है, and you're very very fed up of it. Now you introspect and you realize that a solution तो ये है कि I have to realize that I am not the right person for that job. बड़ा hard है एक ego को ये समझाना, and I'm not able to contribute. So I have to take some calls in my life, very difficult calls, and I have to find a solution for a problem, any problem. So let's say, assume the problem becomes your health, your diabetes, right? So you have to first introspect. And I think you are here today to listen to me. You're here as a part of SugarFit. You're a part of a program that is basically working on your mind and behavior to understand yourself better. You are ready to introspect on the accountability. What have I done for my health? You are ready to look inside yourself and say, have I lost my discipline? Have I understood diet wrong? Have I understood times of eating wrong over the years? Have I understood what needs to come on my plate not correctly? And am I ready to now take these decisions and work on them? I think you all are here today, and you all are in the program because you at a certain point thought that you want to do that. And that's where we are building up, Neha, from. And I always tell people that very, very simple. You have to look at your lifestyle. You have to look at, I'll give you an example, and I don't know if they are here in the program, and I will not take their name, but a very known person to me. And I've known them over the years. I've seen them gain weight, and I have seen them develop diabetes, but I don't interfere in usually the people that I know because, I cannot do that. I can just pray that they will. So with a lot of reluctance, they joined SugarFit program. They didn't know what to do. So, and with the assessment, I was the doctor, of course, on the platform because they came through me. And then, so with the coach, we learned that their whole, and they kept on telling me, we eat right, we do this. So number one, they were having bread and butter for breakfast. Okay. And then their husband used to go to the court, and when they came back from the court, they were having lunch around 3 o'clock. No, he comes at 3 o'clock. We can't have anything. We have to have lunch with him at 3 o'clock. Okay. And dinner obviously was, then they would take a nap, and they would get up at around 6 in the evening, have chai and whatever, 6:37, 8:39 was their dinner. Okay. Years went by, both of them became diabetic, weight gain. They were going for a small walk every morning, and a very quiet, peaceful life, good life. But diabetes came, pre-diabetes came, became diabetes. Waist circumference was growing.
all that we have done is to give them a lot of nutrition. And this I'm giving as an example because I think the example से आप लोग सीखेंगे. वो लोग ब्रेड बटर खाते थे ब्रेकफास्ट में. वेजिटेरियन लंच 3 बजे होता था क्योंकि हस्बैंड कोर्ट से आते थे. 6 साढ़े 6 चाय होती थी और बहुत लोग इससे फेमिलियर होंगे इस प्रोग्राम पे भी. और 8:30 9 बजे डिनर होता था. सुबह हल्का सा वॉक होता था. प्री डायबिटीज से शुरू हुआ, दोनों की वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ते गए, वेट बढ़ते गए, एंड डायबिटीज आ गई, दवाइयां हो गई, सब शुरू हो गया. एंड दे स्टार्टेड टू लूज कि अच्छा ऐसे होता है. हमारी तो लाइफ बहुत सिंपल है, हम तो 10 बजे सो जाते हैं, हम तो सुबह वॉक पे भी जाते हैं, हमारी लाइफ में क्या गलत है, हम तो थोड़ा ही खाते हैं. 6 months into the program, they are without medicine. उनकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस 6 इंच कम हुई है. वेट लॉस तो तुम पूछो ही मत, एक का 9 किलो, एक का वॉटेवर. क्या करा? ब्रेड ले ली गई. सुबह वो खाते हैं दाल का चीला. दे हैव स्टील का टोट्स के अंदर नट्स वट्स डाल के, तो वो खा रहे हैं. और ठीक 11 बजे कुछ नट्स लेते हैं, सीड्स लेते हैं, आधा एप्पल लेते हैं. वो उन्होंने कोट वोट का काम रैप अप करके वो अपना 1:30 बजे अब घर आ रहे हैं, तो 1:30 पे लंच हो रहा है, 3 साढ़े 3 पे चाय हो रही है, और 7 बजे डिनर हो रहा है. मैं रियलिटी बता रही हूँ. अगर वो है भी इस प्रोग्राम पे तो उनको पता पड़ेगा कि मैं उनके बारे में. वो इट इज अनपैरेलल कि हमने सिर्फ क्या करा, हमने थोड़ा हेल्दी खाना रख दिया. खाने से पहले सलाद खा रहे हैं, रोज अपनी शुगर चेक कर रहे हैं. सिंपल. तो क्या करा, एक डिसिप्लिन. आपको बस एक वो स्ट्रॉन्गर फील कर रहे हैं, बाल बेटर हो गए, वेस्ट कम हो गया, यंगर फील कर रहे हैं. थोड़ा सा उनको हमने अपने वीडियोस से, लाइव क्लासेस से, थोड़ा सा हमने मसल स्ट्रेच बैंड्स करके मसल बनाना सिखा रहे हैं धीमे धीमे. हम उनको रात को एक योगा निद्रा है तो वो लेके सोना सिखा रहे हैं अच्छी तरह अर्ली. नेहा, उनकी जिंदगी बदल जाएगी. अभी तो 6 महीने हुए, सब दवाई कदम मेटफॉर्मिन पे आ गए हैं. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बस ये है, ये प्रोग्राम ये है. आपका असेसमेंट, आपका इंट्रोस्पेक्शन, आपका समझना. और उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ टाइम्स ऑफ ईटिंग चेंज करा, थोड़ा क्वालिटी ऑफ ईटिंग चेंज करा, रियलाइज करा कि हमारे लिए ब्रेड बटर नहीं है और हमको अपना डिनर 7 साढ़े 7 खत्म करना है. जिंदगी इतनी सिंपली बदल गई. क्या वो उसके बाद शादी में नहीं गए, एक दिन लेट नहीं खाया उन्होंने? क्या दिवाली नहीं है उनकी लाइफ के अंदर? क्या उनका एक दिन इधर उधर नहीं हुआ? पर अगर आप 300 डेज आउट ऑफ 365 डेज अपने आप को एक नियम पे रखोगे कि मेरा खाना इतने बजे, मेरा स्नैक इतने बजे, मेरा लंच इतने बजे, मेरी चाय इतने, और एक बार मैं सैलेड जरूर खाता हूँ और खाती हूँ खाने से पहले, इफ आई डू दैट, क्या आप कुछ कुछ बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं लाए ना? हमने तो ये नहीं कहा कि आप सब कुछ बंद कर दो, हमने ये नहीं कहा. हम तो सिर्फ आपको आपका मिरर दिखा दिया कि लाइफस्टाइल में कितना फर्क है, जो आप सही समझते थे और जिसने आपको ओवर टाइम वेट सर्कमफ्रेंस दे दिया, नींद खराब कर दी क्योंकि लेट खाते हैं, फिर वो एसिड बनता है, फिर हम एंटा एसिड खाए जा रहे हैं, फिर एंटा एसिड नुकसान करती. इट इज जस्ट अ विशियस साइकिल. पर हमने लाइफस्टाइल ने कर दिया उसको. कैसे महीने दर महीने प्रोग्राम में कोर्स से समझ के अपने आप को धीमे धीमे एक एक टाइम ऑफ ईटिंग चेंज करना, एक एक टाइम अपने को लाइन पे लाना, धीमे धीमे कमरे में बैठ के 15 मिनट बारिश हो रही है एक्सरसाइज करके सीख लेना, ब्लड फ्लो का ख्याल रखना. आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा सहज मैं किसी चीज को बना सकती थी किसी के लिए. इससे ज्यादा सहज मैं किसी को समझा सकती थी कि क्या हो सकता है जिंदगी में करना. एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और आप समझेंगे कि मैंने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करा और क्यों ये लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी ही लाइफस्टाइल से दवाइयां कम कर सकें. आई थिंक नेहा, दिस इज व्हाट आई हैव टू से. Okay, ma'am, very beautifully said. And now coming like, to SMBG, we always say that, self-monitoring of blood glucose, readings is very important. That as a patient, how this helps and how we can connect SMBG, self-monitoring of blood sugar, to the titration of medications. Because people need, I know you have been talking about it in the meanwhile, but again, thoda sa, I think we need to emphasize more on it. Because they should understand why regular checking the blood sugar readings is important, how it can empower them in understanding the potential of adjusting the medications by the health practitioner, because this is one of the very important parameter. I think we can give little emphasis on this part. बिल्कुल बिल्कुल नेहा, उसके बगैर तो सब कुछ ही इनकम्प्लीट है. बिल्कुल मैम.
तो मैं सबसे पहली बात कहना चाहती हूँ कि आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई प्रे एवरी डे कि मेरे किसी पेशेंट को आगे जाके चेक ना करना पड़े और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप अपने ब्लड शुगर्स यहाँ पे टच करें, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर होता है, और आपकी शुगर पर वो टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है। तो आपको कोई कह भी रहा है तो वो नहीं है। और अगर हम जो आजकल ग्लूकोमीटर भी आए हुए हैं वो ऐसे हैं कि आपको दर्द तो नहीं होता है, हाँ आपको ब्लड देखना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रिप में डालना पड़ता है, मैं उस सबको समझती हूँ। पर मैं 5 साल तो मैंने जॉब करानी है, मैंने 29 ईयर्स जॉब करा है और मैंने हर तरह के इंडिविजुअल्स को पहचान लिया है। ये हमारा माइंड है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं नेहा बोलती हूँ कि मेरे ऑफिस में पेरेंट बच्चे को लाते हैं, जबकि मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ, क्योंकि उनका बच्चा भाग रहा होता है क्लिनिक में बिकॉज इंजेक्शन नहीं लगेगा, रनिंग। मतलब मैंने 45 मिनट एक एक घंटे बच्चों के डर को समझा है, एंड वो भाग रहे हैं और वो इंजेक्शन, और वो माँ उन पे चिल्ला रही है और पेरेंट फादर हैज लॉस्ट कंट्रोल, वो भी चिल्ला रहे हैं, हम उनको कमरे से निकाल के कैसे उन बच्चों को। तो कई बार मुझे ग्लूकोमीटर में जो मेरे पेशेंट्स नहीं करते हैं और कहते हैं हमें दर्द हो रहा है और हमारा ये हो रहा है, तो मुझे वो चीज याद आती है कि मैं उन बच्चों को समझाती थी कि ये जो तुम्हारे माइंड में जो ये ना एक वो बैठा रहता है, एक थॉट डेविल कह लो, और वो एक छोटी सी बात को हमारे लिए बहुत बड़ी बना देता है। जब हमें मच्छर काटते हैं और ब्लड निकलता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको लगता है मलेरिया ना होना चाहिए, डेंगू ना हो जाए, बट हमको दर्द नहीं, आउच लगता है पर दर्द नहीं लगता, और हम उस ब्लड को आराम से संभाल लेते हैं। तो मैं उन बच्चों को बोलती थी, और छोटे छोटे बच्चों को 2 साल 3 साल, मैं कहती थी कि जब तक तुम देखोगे नहीं, तुम्हारे माइंड ने वो नीडल वो ब्लड, तो कहीं पे मुझे उनको दिखाना पड़ता था और उनका डर एक बार निकालना ही पड़ता था। आई हैड अ वे कि मैं उनका डर निकालती थी। तो मैं अपने पेशेंट्स को भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिंदगी बहुत देख ली, आप तो वो बच्चे नहीं हो, और आप अच्छी तरह समझते हो कि माइंड एक डर बना देता है। और कई बार पेशेंट्स जो मुझे ये भी कहते हैं भाई बहुत महंगा है हमारे लिए, मैं डिनाई नहीं करती हूँ, पर पूरे महीने में आपको 600 रुपये से लेकर 800 रुपये लगते हैं पूरे महीने का चेकअप कराने में पर डे। और कई लोगों के लिए, मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, पर बहुत लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम बाहर जाके 2 समोसे खाते हैं और एक डिनर करके आते हैं, या फिर हम एक मूवी थिएटर जाके देख के आते हैं, और हम 1-2 हज़ार रुपये यूं ही खर्च कर देते हैं, और ये आपके महीने भर का टेस्ट है जो आपको जिंदगी भर हार्ट अटैक्स, किडनी फेलियर्स, 10 गोलियां जो इतनी महंगी होती हैं उस सब से छुटकारा दिलाता है। तो ये कुछ लॉजिक ना ब्रेन का बन नहीं पाता। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा आप ये बताइए कि आप अगर आपकी दवाइयां कम हो जाएंगी तो आपका कितना खर्चा बचेगा साल में। एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि बहुत कुछ बचता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर एंगल से मैं इसको समझ चुकी हूँ कि हमारे ब्रेन ने ये थॉट प्रोसेस बना दिया है कि भाई नहीं, कोई सा भी रीजन है, कैसा भी रीजन बना है कि हमें ग्लूकोमीटर चेक ना करना पड़े। पर मेरे पास और कोई तरीका नहीं है आपका मेडिसिन टाइट्रेट करने के लिए। अगर आप मेरे पास 3 महीने बाद आते हो और आपका कोई नंबर चेक नहीं है और आप कहते हो अरे A1C कम हो गया डॉक्टर शरीफ, पर मैं कहती हूँ पर मुझे ये नहीं पता कि पिछले 10 दिन की आपके नंबर क्या है, मैं आपकी गोली कैसे कम करूं, राइट? तो पेशेंट को दुख होता है कि डॉक्टर ने नंबर नहीं बदले, दवाई नहीं बदली, और मेरा 1 पॉइंट कम हुआ। अब मैं 1 पॉइंट का, अगर आपका 9% है, मैं 8% का क्या कहूंगी, वो तो कल बढ़ जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तभी तो नहीं बढ़ने देंगे। तो SMBG इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको लिटरली 100% to 0% मीन्स जिन लोगों ने अपना डेली चेक करा 100% मेडिसिन रिडक्शन, और कई बार रिवर्सल विद दवाइयां बंद, और जिन्होंने नहीं चेक करा 100% दवाई कम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज द रोल ऑफ ग्लूकोमीटर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझती नहीं हूं कि आपने कितना बड़ा हर्डल क्रॉस करा है उसको अपने डे टू डे में ढालने के लिए, इन योर डे टू डे डिसिप्लिन। आई अंडरस्टैंड all that your mind had to get trained and understand
before you can cross that hurdle that I have to check every single day. I appreciate that, but that is one more fear that you have conquered. और कहते हैं ना कि हर डर को अगर हमने काउंकर करा है, हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए. चाहे कोई सा भी डर है, उस तो फेस करना और आगे बढ़ना. तो आई विल प्रे फॉर एवरीबडी, बिकॉज मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि मैं आपकी मेडिसिन टाइट्रेट कर सकूं. मेरे पास कोई और तरीका नहीं है कि मैं आपको एक रिवर्सल स्टेट पे लाके दूं. बट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 100% डेली SMBG चेक करेंगे, आप अपना दिन उसके अकॉर्डिंग गुजारेंगे, आप अपना आप फूड चॉइसेस उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि आज मेरा नंबर हाई था या कम था. आप खुद क्यूरियस हो जाएंगे कि आज मैंने दिवाली में ये खाया तो मेरे संग क्या हुआ. मतलब मेरे एक पेशेंट है जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, मतलब बहुत, दिन में 3-3 बार वर्कआउट करते हैं. वो कहते हैं रक्षवी खाना इतना नहीं छूट पाता, पर मैं ग्लूकोमीटर चेक करता हूँ और मैं 3-3 बार. तो ही डू strength training daily, he's going to do yoga daily, he's going to run daily, he's just muscled. उन्होंने अपनी बॉडी को फैट से मसल में कन्वर्ट कर लिया. आई एम वेरी हैप्पी. और उन्होंने फिर दिवाली पे इस बार 4 आलू की कचौड़ियां खाई, 4, and he showed me the number. It did not go up because his muscles were so strong. So I really think that but he checks. So he was very curious that if I've had aloo kachoris, what is my number? So this is for your own thing, how you get over the fear, the hurdle, the thought process. क्योंकि आपका mind ना बहुत बहाने बना देगा. It will make excuses. Oh, it's expensive. Oh, it's this. Oh, it's that. You have to sit and introspect and think, why is my mind making I spend this 1,000 rupee, in a theater any day. So I think looking at yourself, because there is no other way. There is absolutely no other, not currently. So ये जो CGM टेक्नोलॉजी है वो 14 days की है and बहुत expensive है. And that one I don't think everybody can afford. For every 14 days 4,000 rupees. It's impossible. That means 8,000 a month. So I can't even expect that. तो जो कर पा रहे हैं अफोर्ड वो बात अलग है, पर जो नहीं कर पा रहे हैं 90% cannot. So they need to do SMBG. Absolutely, ma'am. I hope you all will check your readings now more regularly, because I think Dr. Chavi has given you the valid reason to do the same. Now, when we talk about exercise, ma'am, my next question also is around the same, that patients, they think that exercise, like if we are controlling the food, exercise is not important, or if we are exercising, the food can be managed. But, there is a balance that we have to bring in. So as a patient, can incorporating regular exercise and strength training can play a key role in reducing the medications or reducing the dependency on the medication and improving insulin resistance? How do you want to take this up? Please clarify on this part, because people don't give preference to the exercise, they don't make out time. I think Neha, मेरी सारे answers में exercise आया है. And I think everybody understands. अगर हम medically जानना चाहते हैं, then of course every study has shown that people who do strength and conditioning, but we have to sort of explain to people strength and conditioning क्या होती है, because हम बोल देते हैं पर हम समझा नहीं पाते. But let me tell you कि हमारी जो ऐप है उसके अंदर बिल्कुल अलग तरीके से strength and conditioning समझाई जाती है. और अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप के संग प्ले करना पड़ेगा. उसमें जो लाइव क्लासेस हैं वो लेनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि जो डॉक्टर साहब पूरे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस बोलती रहती हैं, ये है क्या. तो ये एक टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारी बॉडी को, जैसे अगर अपने आपका हाथ है, आपने एक तो हाथ ऐसे उठाया और एक मैं दूसरा हाथ इसके ऊपर रख देती हूँ, अब मैं इसको पुश कर रही हूँ उठाने के लिए. क्या हो रहा है, ये सारी मसल्स इस हाथ की दे आर वर्किंग अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस. तो मैंने रेजिस्टेंस दिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ऑफ द होल बॉडी. ये तो मैं हाथ का एग्जांपल दिया. और ये इतनी इजी होती है, ये एक्चुअली कमरे में हो जाती है. तो कई बाजार में आते हैं, आपने देखे होंगे इलास्टिक बैंड्स, उनको बोलते हैं हम थेरा बैंड्स. डिफरेंट टाइटनेस पे होते हैं, कोई लाइट होता है, कोई मीडियम होता है, कोई हार्ड होता है. और वो आप जब आप उनको उनके अकॉर्डिंग खींचते हो, आप ऊपर से उठाते हो, आप दोनों लेग्स हाथ से करते हो, अपने थाइस पे बांध के फिर चौड़ा करके चलते हो, आप अपनी उन्हीं मसल्स को रेजिस्टेंस दे रहे हो. यू वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस. तो बिल्डिंग मसल फाइबर्स बिकम्स वेरी बिग व्हेन यू गिव रेजिस्टेंस. इसको बोलता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग.
और तरीके से होती है, कई लोग प्लैंक्स में पोजीशन में बैठे थे, कोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बॉडी में एक हमारी जो अम्बिलिकस होती है, इसको क्या बोलते हैं, व्हाटएवर, अम्बिलिकस होती है सेंटर ऑफ स्टमक की, और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं कोर। कोर उस वो हमारी बॉडी के पूरे एब्डोमिनल थाइज, वो हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा सोर्स है। उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसके बहुत तरीके होते हैं, कोर 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 बिल्डअप, कोर एक्सरसाइजेस करना। और वो भी अगर आप बोट नौका पोजीशन में, सपोज आप आराम से काउंट टिल 25, काउंट टिल 50 बैठ, आपका कोर, और आपको फोकस डालना है अपने कोर पे व्हेन यू आर डूइंग दैट एक्सरसाइज, कि क्या मेरा सेंटर ऑफ एब्डोमेन अम्बिलिकस के पीछे वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और वो उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, मेरे हाथ कहीं टच नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग। एंड एवरी स्टडी एंड वर्कआउट हैज शोन कि नॉट ओनली डायबिटीज, आपकी हार्ट, आपका आपका ब्लड प्रेशर, आपका सुपर बेनिफिशियल फॉर इट। तो ये आपकी जिंदगी में अगर 15 मिनट या 20 मिनट रोज आ जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। और आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बारिश की जरूरत नहीं है, आप अपना मैट डालिए, पर सीखिए तो सही। और हर एज पे उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, यंगर एज ज्यादा कर पाएंगी, ओल्डर एज कम कर पाएंगी। यार हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो हमारा ऐप पे बेस्ड है, वो आपको इतनी अच्छी तरह ट्रेन करता है। हमने सब डाला हुआ है इसीलिए कि एक्सरसाइज के बगैर, मसल बनाने के बगैर किसी भी एज पे मसल बनती है, किसी भी एज पे। वो सही खाने से बनती है और सही एक्सरसाइज से बनती है, और मसल बन गई तो वो हमारे पैनक्रियास को रिप्लेस करती है शुगर एब्जॉर्प्शन में। पहला ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट एब्जॉर्ब शुगर इज मसल। तो बहुत जरूरी है। खाली वॉक ही एक्सरसाइज नहीं होती है, तरह तरह की एक्सरसाइज करा करें, उनको उनका फायदा समझे। और वो सब हमारी ऐप पे है। बिना एक्सरसाइज के खाली खाने से हम शुगर कम कर लेंगे, पर वो सस्टेन्ड नहीं रह पाएगा। तो आज आपका जो मैं कह रही थी कि वो इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि उन्होंने 4 आलू की कचौड़ियां खाई, शुगर नहीं स्पाइक करी, उसको बोलते हैं सस्टेनेंस। क्योंकि उन्होंने मसल इतनी बना ली है कि जो उनके आलू कचौड़ी से सोक कर लिया। तो आप अभी अभी खाना कम कर देंगे, आपके नंबर कम हो जाएंगे, पर आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। रिवर्स भी हो जाएगी पर टेम्परेरीली हो जाएगी। जैसे ही आपका खाना जरा सा भी बिगड़ा, क्योंकि आपने मसल बिल्डअप नहीं करी है, तो वो ऑर्गन ही अवेलेबल नहीं कि शुगर को जो एब्जॉर्ब करेगा, तो राइट अवे स्पाइक आएगा। तो आप कहेंगे इतना करने के बाद, दवाइयां कम होने के बाद अब वापस स्पाइकिंग हो रही। आपने कितनी मसल बनाई और कितने अपने फैट को मसल में कन्वर्ट करा, तब ये क्वेश्चन आपसे आपके अंदर ही आना चाहिए कि इसलिए नहीं हुई, इसीलिए स्पाइक्स आ गए। आई थिंक नेहा, आई हैव सेड एवरीथिंग आई हैव टू से। मैम बहुत जरूरी था एंड बहुत अच्छे से आपने समझाया. एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि मेनी पीपल कम टू मी एंड से कि टाइम ही नहीं है. So I tell you that one thing, Dr. Chavi, she is every day traveling 50-60 kilometers. She's whole day busy on her toes, but still she makes sure that every morning and evening she's doing her workout. And I've seen it. So even though guests are coming at home or kuch bhi ho, in all the circumstances, she makes sure that she practices it. So I think when she can do it, we all can do it. And you can see her physique at this age also. She looks so young and so energetic. And it's all because of her discipline that she has adopted and 100% नेहा, आई she has इंटरेस्ट been every single consistent day. with from such a long time. So it's your life. Yes, Yeah. ma'am. पर नेहा, सबसे जरूरी मैं मानती हूँ अपने माइंड को। ये माइंड है जो हमको हर डायरेक्शन में लेके जाता है। तो मेरी टॉक्स जब होती हैं, आई ऑलवेज टॉक अबाउट माइंड। और तुम जो कह रही हो कि मैं आई ट्रैवल 50 किलोमीटर्स एवरी सिंगल डे, 60 समटाइम्स, एंड ट्रैफिक होता है, एंड मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ। मैं अपना लंच भी स्टैंडर्ड रखती हूँ, सिंपल। मैं अपना टाइम पे खाना, टाइम पे, एवरीबडी इन द ऑफिस नोज की रक्षा भी 1 o'clock शी विल बी एट द लंच टेबल। कोई कुछ कहे चाहे नहीं कहे, आई विल बी, कुछ भी होगा, मैं 1 से 1:15 के बीच में खाना खा लेती हूँ। एंड आई थिंक डिनर इज डन बाय 6:37। कभी नहीं होता कि उसके बाद खाना खाया जाए। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने माइंड को रोज में वर्क करा। if I don't meditate, if I don't do mindfulness, if I don't introspect, ये सब खो जाएगा। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस, अभ्यास कहते हैं हम, करना बहुत जरूरी है। एक बार आप उसको अभ्यास नहीं छोड़ सकते, चाहे वो किसी भी चीज का है, एंड स्पेशली द माइंड। तो आप कितने फोकस्ड हो इस कॉन्फ्रेंस में, जैसे मैं आपको डील कर रही हूँ,
या मैं काम पे कितनी हूँ, या मेरा डायरेक्शन ऑफ फोकस क्या है, मैं आज मेरे चिल्ड्रन नीड माय अटेंशन, और मेरे किसी भी उसका जो एक वो जो है जो वो इंट्रोस्पेक्शन से आता है, वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आता है, वो हार्टफुलनेस प्रैक्टिस से भी आता है। तो मैं आप सबको एक और भी चीज चाहूंगी कि आप सब लोग 15-20 मिनट एवरीडे ध्यान में लगाएं, अपने इंट्रोस्पेक्शन में लगाएं, और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए सिर्फ आप अपने आप को इक्वेशन में रख सकते हैं। आप ये नहीं कहिए कि मेरी चारों तरफ की सर्कमस्टांस ऐसी इसलिए मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, या उस सर्कमस्टेंस में भी आप बेस्ट हो सकते हैं, पर आप उसके विक्टिम बन रहे हैं। जब आप मेडिटेशन माइंडफुलनेस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लोगों की तो सर्कमस्टेंस हमसे भी 10 बुरी हैं, फिर भी वो कर पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं अनएम्पैथाइज कर रही हूँ आपकी सिचुएशन से या कोई प्रॉब्लम से, पर कहीं आपने उसमें गिव इन कर दिया, आपने कह दिया कि अब ये है तो अब ये है, अब इसकी प्रॉब्लम है, इस सर्कमस्टेंस की प्रॉब्लम है, या इस सिचुएशन की प्रॉब्लम है, मैं ठीक हूँ। एंड द मिनट हम किसी और को अपनी लाइफ का कंट्रोल देते हैं, चाहे वो सिचुएशन हो चाहे वो, और द मिनट वी लूज कॉन्फिडेंस कि हम अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पे लीड कर सकते हैं, और वो ताकत सिर्फ आती है अभ्यास ऑफ मेडिटेशन से। I would More questions. I know time has been exceeded and it's your Sunday and I have taken your time on this day. Thank you so much for the time, ma'am. Means a lot. But दो क्वेश्चंस मैम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लग रहा है कि हम उस पर क्लैरिटी लेते हैं। हम लोगों को दे हैव अ क्वेश्चन कि बिफोर फूड मींस लाइक कितना गैप देना चाहिए मेडिसिन के बीच में और खाने के, अगर हम बिफोर ले रहे हैं या आफ्टर ले रहे हैं, कि वी कैन टेक इमीडिएटली आफ्टर द फूड और वी शुड गिव सम गैप बिफोर और आफ्टर द मील्स। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं कहती हूँ कि आप समझ लीजिए इंसुलिन और सल्फोनाइलयूरियल्स जो आप दवाई लेते हैं, मैं कहूंगी कि इंसुलिन अबाउट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स बिफोर फूड, एंड वो वाली भी गोली भी 5-10 मिनट पहले खाने के, और सामने खाना रख के खा लीजिए 10 मिनट के अंदर। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 15 मिनट्स में तो आप खाना खा ही लीजिए। तो ये खाने के पहले की बात हो गई। खाने के बाद की मैं चाहती हूँ कि मेटफॉर्मिन तो मैं लिटरली लोगों को बोलती हूँ ऑन अ फुल स्टमक, मतलब खाना खाया 5 मिनट बाद पानी पिया, उसके बाद आपने अपनी गोली ले ली। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आफ्टर फूड, ये आप जो थिंकिंग करते हैं 5, 10, 15, 20, 30, आई डोंट वांट यू टू फोकस ऑन दैट प्लीज। इन जनरल खाना खत्म करा, और खाना हमारे पेट में हाफ एन आवर तक तो काफी फुल रहता है, तो आपके पास टाइम है। आप 10 मिनट बाद लीजिए, आप 15 मिनट बाद लीजिए, आप 20 मिनट बाद, बट 30 मिनट्स बाद द स्टमक स्टार्ट्स टू बिकम लेसर इन अमाउंट। तो जिन सब मेडिसिन को फुल स्टमक चाहिए, विद इन 30 मिनट्स, ऐसे बोला जाए जी, विद इन 30 मिनट्स ऑफ फिनिशिंग योर मील यू हैव टू टेक ऑल मेडिसिन दैट वर आफ्टर फूड। एक गोली को मैं यहाँ स्टैंड करना चाहूंगी, वो गोली नहीं है, वो सप्लीमेंट है। मोस्ट कैल्शियम शुड नॉट बी टेकन ऑन अ फुल स्टमक। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ आपसे। कैल्शियम चौक होता है, वो हमारे खाने के जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, खाने के 1.5-2 घंटे बाद लीजिए, स्नैक के संग ले लीजिए, पर और दवाइयों से कैल्शियम न मिक्स करें। कि मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ, हमने सारी गोलियां साथ में ले ली, हमने सारी गोलियां अरे आप अलार्म लगाइए, आपका फोन इतने अच्छे आ गए, आप कैल्शियम प्लीज गोलियों के साथ न लें। बाकी आफ्टर फूड का मतलब है अंडर 30 मिनट्स ऑफ फिनिशिंग फूड ले लेना चाहिए। बट आप मतलब अगर आप नहीं ले रहे हो, डायबिटीज और भूल गए, तो भाई 1 घंटे तक भी ले सकते हैं, बट 90% द गाइडलाइंस आर अंडर 30 मिनट्स आफ्टर फिनिशिंग फूड। People like who are fasting, they want to know, like those who do spiritual fasting weekly once, so how they should, what they should take, how they should take the medicines and what all pointers you want to share with them. तो नेहा मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारी स्पिरिचुअल फास्टिंग है जो हमें इजीली अलाउ करती है कि हम नट्स खाएं, हम सर्टेन फ्रूट्स खाएं, हम दही लें, दूध लें, देयर इज इनफ स्पिरिचुअल फास्टिंग फूड दैट इज लाइक फूड। तो आप अपने कोच से एडवाइस लें, आप आराम से अपने स्नैक्स लें, आप आराम से अपनी स्पिरिचुअल फास्टिंग को समझें, और आप आराम से समझें कि कोई भी हिंदू स्पिरिचुअल फास्टिंग आपको ये नहीं कहती कि आप पूरे दिन मत खाइए, आप गलत कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। तो आपको अगेन उसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर लाइफ कोच कौन कौन से नट्स, कौन कौन से मिल्क, कौन कौन से फ्रूट, एंड अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। मैं जनरल ब्लैंकेट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दे पाऊंगी।
Thank you so much, ma'am. I think we have covered all. कुछ specific questions आपने अपने से related पूछे जो इस platform पे लेना बहुत मुश्किल रहेगा because we don't know you, we don't know your history. So please sit with your doctor and the coach. G-Meet schedule करिए if you have more doubts and you all three can sit together and discuss. We have all the competent doctors over here in our platform and we will share the recording of the session also so that you can listen to it with peace. एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, but आप एक दो बार सुनेंगे ना तो चीजें आपके अंदर अपने आप आने लग जाएंगी. Thank you so much, ma'am, for your time on Sunday. I know I have disturbed you during the Sunday time, but thanks a lot for this मैं session. बहुत enjoy करा लिया, बहुत enjoy करा, and I appreciate everybody giving their time on Sunday to attend it. So बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से बातें हुई हैं, नेहा ने बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम कंडक्ट करा है. आई एम वेरी सॉरी कि मैं प्योरली हिंदी नहीं कर सकती और मैं प्योरली इंग्लिश भी नहीं कर सकती बिकॉज वी हैव अ पैन इंडिया ऑडियंस. तो हम सबको एक दूसरे के लिए सोचना है एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप everybody in mind and do it. But have a wonderful Sunday, and Neha, thank you again for your wonderful. Thank you so much, ma'am, for making out the time for us. Thanks to each one of you for joining this session and making this more successful. Please एक बार बैठ के गौर फरमाइएगा, सोचिएगा, सेशन को फिर से सुनिएगा और धीरे धीरे अपने अंदर वो जो आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं उन पे काम करिएगा. आई एम श्योर कि बहुत अच्छे से रिवर्स करेंगे, मेडिसिन भी कम करेंगे और आने वाले टाइम में हम इन मेडिसिन से छुटकारा भी पाएंगे. Thank you, ma'am. Have a wonderful Sunday, and thanks to each one of you. Have a wonderful Sunday ahead.